अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हम लोग स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और उसमें हम लोगों ने अभी तक एक इंट्रो से डिस्कस किया है केमिस्ट्री के बारे में, एंड वी हैव डिस्कस्ड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री सो फार। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट टॉपिक 1.2, दैट इज़ बेसिक डेफिनेशंस. First of all, we people have the definition of matter, then we have a little discussion about substance, then mixture, then some definition about physical properties, and then about the chemical properties. So starting off, matter is defined as matter is simply defined as anything that has mass or occupies space. Our bodies as well as all the things around us are examples of matter. In chemistry, we study all types of matter that can exist in any of the three physical states: solid, liquid, or gases. So when we people are discussing generally about matter, so it can exist in either the state. It can be in a solid state, or it can be a liquid state, or it can be a gaseous state thing. तो इसके लिए कोई भी स्टेट हो सकती है. देयर इज नो कंपल्शन के इट हैज़ टू बी सॉलिड और इट हैज़ टू बी लिक्विड और it has to be gas. So it can be anything. A piece of matter in pure form is termed as a substance. And if we have a matter in its pure form, which means कि उसमें कोई impurity ना हो किसी किस्म की भी, कोई उसके अंदर impurity ना हो, कोई जो उसकी प्योर फॉर्म है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, उसके वो उसी में एग्जिस्ट करे, उसमें कोई हम लोगों ने किसी किस्म की एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना की हो, मतलब कोई चीज़ उसमें से रिमूव ना की हो या उसमें कोई चीज़ फर्दर एड अप ना की हो. So that thing is named as a substance. Every substance has a fixed composition and specific properties or characteristics. As I already mentioned कि हम लोगों ने इसमें कोई चीज़ मिक्स ना की हो ना ही ऐड की हो, बिकॉज एक सब्सटेंस जो होती है उसकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है. बाय फिक्स कंपोजिशन वी मीन कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे वो बना हुआ है सब्सटेंस, दैट शुड रिमेन सेम. उसकी परसेंटेज में किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आनी चाहिए. If the variation occurs in its composition, so that substance will become a mixture. वही हम आगे स्टडी करेंगे. और डेफिनेटली और अगर उसके अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएंगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी है वो दैट विल चेंज. Whereas impure matter is called as a mixture, which can be homogeneous or heterogeneous in its composition. Homogeneous or heterogeneous mixtures हम लोग इंशाल्लाह in the coming chapters we people will study that, so leave it up to that thing. तो इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत डिटेल में है ये चीज़ें, so we'll discuss it there. We know that every substance has a physical or as well as chemical properties. The properties those are associated with the physical state of the substance are called as physical properties, such as color, smell, taste, hardness, shape of crystals, solubility, melting or boiling points. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, तो आप इसको जैसे जस्ट रिमेंबर इट विद द कीवर्ड फिजिकल. इसमें आपको फिजिकली जो चीज़ें नज़र आती हैं, सपोज कलर है उसका, कि जो भी आपके पास सब्सटेंस है या वो है तो उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, हाउ डज इट टेस्ट, उसकी हार्डनेस का लेवल क्या है और उसकी शेप ऑफ क्रिस्टल्स क्या है, आइदर दैट थिंग इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, then melting point and boiling point. So all these things, all these factors fall into the category of physical properties. For example, when ice is heated it melts to form water. When water is further heated it boils to give the state. In the entire process only the physical states of the water changes where its chemical composition remains same. अब आप ये देखें सॉरी, जब हम लोगों ने वाटर को आइस को हीट किया तो इट बिकेम वाटर, एंड व्हेन वी हीटेड वाटर इट बिकेम स्टीम. अगर आप लोगों ने आइस का फार्मूला लिखना चाहें, आइस वाटर का फार्मूला लिखना चाहें, तब भी वो H2O ही लिखेंगे. इफ़ यू हैव टू राइट द फार्मूला ऑफ लिक्विड वाटर तब भी आप उसको H2O ही लिखेंगे. एंड इफ़ यू हैव टू राइट द फार्मूला ऑफ स्टीम इवन देन यू विल राइट H2O. सो यू सी कि उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, बट द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम. केमिकल कंपोजिशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप उसको रिएक्ट नहीं करवाते या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं होगा. सो the chemical properties depend upon the composition of the substance. When a substance undergoes a chemical change, its composition changes and a new substance is formed. यही हम लोगों ने भी डिस्कस किया है कि जब तक कोई केमिकल चेंज नहीं होता तो तब तक न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेन एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. हम लोगों को पता है कि जो वाटर की कंपोजिशन क्या है, वाटर की कंपोजिशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड इफ़ वी डू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर, तो वो क्या होगा कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स में दैट वर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें वो स्प्लिट हो जाएगा. सो आफ्टर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी पीपल विल हैव hydrogen and oxygen gases. All materials are either substance or a mixture. Figure 1.1 shows the simple classification of the matter into different forms. ये एक फ्लो चार्ट है मैटर का, मिक्सचर एंड सब्सटेंस. देन अगेन मिक्सचर में कैटेगराइजेशन है होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर की. सब्सटेंसेस को आप एलिमेंट और कंपाउंड में फर्दर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. So class, I think it's up for today, as my throat is also a little disturbing today right now. So we'll continue the class tomorrow inshallah with the next chapter. Allah Hafiz.